Hello students, I am Suruchi Jain, your English language teacher. Today I'll explain you lesson number 2, the tsunami of your textbook Hornbill. So I'll start. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Now here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. Now I'll start with the first part of the chapter. Actually, this part gives us some important and inspiring incidents. These occurred when tsunami hit some parts of India. The stories are from Andaman and Nicobar Islands. See, the first story is about Ignatius. These stories are from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago actually means a group of many islands and the surrounding sea, जिसे हम हिंदी में वो जो द्वीप जिसे बोलते हैं. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. Now this story is, about unfortunate Ignatius. His wife woke him up at 6 a.m. sensing an earthquake. अब जो उसकी वाइफ थी उन्होंने जो इग्निशियस थी उनकी वाइफ ने 6 बजे सुबह उनको उठाया बिकॉज शी कुड फील शी कुड सेंस द अर्थक्वेक. इग्निशियस पुट द टेलीविजन ऑन द ग्राउंड टू सेव इट फ्रॉम द क्वेक. अब इग्निशियस ने क्या करा, फटाफट से टीवी जो सेट था उनका वो उठा करके ज़मीन पे रख दिया ताकि वो अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन पर गिर करके टूट नहीं जाए और कोई नुकसान ना हो. Then all the members of the family rushed out. When the tremors stopped, they saw the sea rising. अब सारे जो थे, जितने भी फैमिली में मेंबर्स थे, वो सारे बाहर भाग गए क्योंकि उन्हें बचना था. When the tremors stopped, जब झटके अर्थक्वेक के रुके तो उन्होंने देखा कि जो सामने जो सी है उसकी जो बड़ी बड़ी लहरें जो थी वो उनकी तरफ आ रही थी. बड़ी बड़ी लहरें उनको अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी. This caused them confusion. They ran but in opposite directions. अब सब घबरा गए और भगदड़ में घबराहट के कारण सब अलग अलग opposite directions में भाग गए. His wife was swept away. Her 2 children along with her father and brother were also lost. अब क्या हुआ, जो उनकी जो वाइफ थी, इग्निशियस की वाइफ और उनकी वाइफ के फादर और 2 बच्चे और उनकी वाइफ का जो ब्रदर था, वो सब जो थे वो जो बड़ी बड़ी जो वेव्स थी उनमें बह गए. एंड इग्निशियस ने अपनी वाइफ को, 2 बच्चों को, फादर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को खो दिया सुनामी में. लेकिन जो बाकी जो 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ आए थे वो बच गए थे बिकॉज वो इग्निशियस के साथ थे. Next story is of Sanjeev, who was a policeman. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. Now the story is of brave Sanjeev, who was a policeman. वो manage कर लेता, somehow he was able to manage to save his life, his wife's life and his baby daughter's life. यानी वो अपनी वाइफ और जो उसकी छोटी सी जो डॉटर थी उन तीनों की जान वो बचा लेता है. लेकिन तभी उसको जो है आवाज़ आती है हेल्प के लिए, कोई पुकार रहा होता है. वो कौन होता है, जॉन, जो कि उनका गेस्ट हाउस कुक था, उसकी वाइफ वो फंसी हुई होती है. उसकी हेल्प की जो क्राइज़ हैं वो जॉन को इसको संजीव को सुनाई पड़ती है और संजीव एकदम से वाटर में कूद जाता है उसकी जॉन की वाइफ को बचाने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली दे बोथ वर स्वेप्ट अवे एंड ड्राउंड. वो दोनों डूब जाते हैं पानी में.
The next story is of 13-year-old Meghna, who was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding onto a wooden door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. Daze means in a state of shock and confusion. अब जो ये अनफॉर्चुनेट जो मेघना थी, वो 13 इयर्स की एक गर्ल थी, वो खुद तो बही और किन किन के साथ में बही, उसके पेरेंट्स और 77 और लोग थे, वो सब पानी में जो लंबी लंबी जो वेव्स थी सुनामी की उनमें बह गए थे. एंड शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर. उसने बट फॉर्चुनेटली उसके पास जो थी ये जो वुडन डोर था वो उसको पकड़ करके 2 दिन तक वो उसके ऊपर चढ़ के फ्लोट करती रही पानी में. 11 टाइम्स उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स अपने ऊपर से उड़ते हुए देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हेलीकॉप्टर्स थे उसमें जो बैठे हुए पर्सन्स थे उन्होंने उसको मेघना को नहीं देखा. एंड शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव ओनली. और वो एक लंबी वेव के साथ दोबारा जो है वो शोर पर वापस आ गई, यानी जो बीच था वहाँ तक वो वापस आ गई किनारे सी के. And finally that is how her life was saved. But when she came to the shore, she was in a utter shock. The next story is of Almaz Javed. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nankavri Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Almas's father saw the sea water recede. Recede means to move back from where it was, यानी पीछे की तरफ जाना. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. Almas's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Now this story is about the tragedy of Almaz, who was 10 years old. The family was sleeping but her father had woken up. अब सुबह जब जो सुनामी की वेव्स जब आई तो बहुत सुबह का टाइम था, सारे सो रहे थे, बट उसके जो एल्मास के जो फादर थे वो उठे. He saw the water receding after the ट्रेमर्स. अब उन्होंने देखा कि ट्रेमर्स के बाद यानी झटकों के बाद, भूकंप के झटकों के बाद जो सी का जो वाटर था वो पीछे जा रहा था, और वो ये जानते थे कि जो सी की वेव्स हैं वो ग्रेट फोर्स के साथ दोबारा वापस आएंगी. ही वोक एवरीवन ट्राइंग टू रश टू अ सेफर प्लेस. उन्होंने सबको उठाया ताकि सब सेफर प्लेस की तरफ जा सके. एज दे रैन हिज फादर फेल डाउन. हुज फादर? एल्मास's ग्रैंडफादर एक्चुअली, यानी उसके फादर के फादर. उनको सिर पर किसी चीज़ से उनको जैसे चोट सी लगी और वो नीचे गिर गए. ना एल्मास's फादर रश टू हेल्प हिम. देन केम अ बिग वेव एंड स्वेप्ट देम बोथ अवे. यानी फिर एक बड़ी सी वेव आई और दोनों को, यानी एल्मास के फादर और उसके ग्रैंडफादर दोनों को वॉश ऑफ यानी वो ले गई. हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे टू. उसकी जो एल्मास की जो मदर थी और जो उनकी आंट्स थी वो कोकोनट ट्री की ब्रांचेस को पकड़ करके वो समहाउ दे वर होल्डिंग देमसेल्व्स. लेकिन उस फिर से अचानक से एक बड़ी सी वेव ने उन सबको भी वो बहा करके ले गई. दे वर स्वेप्ट अवे विद द ट्री दे वर होल्डिंग ऑन टू. यानी ट्री सहित, ट्री के साथ, ट्री पूरा का पूरा ट्री जिसके साथ वो लटके हुए थे एल्मास की मदर और उसकी आंट, वो सब पानी में बह गए. Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it and then fainted. अब एल्मास ने एक बड़ा सा जो लॉग था लकड़ी का, उसको वो पकड़ करके उसके सहारे उसको ऊपर जो है वो क्लाइंब कर गई. एंड देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई. और फिर जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? इन अ हॉस्पिटल. शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा. और फ्रॉम देयर फ्रॉम कमोटा शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर.
अब वो जो छोटी सी जो बच्ची थी, बिकॉज शी वॉज सो ट्रॉमेटाइज, शी वॉज सो शॉक्ड कि अब इस इंसिडेंट के बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती है, और वो आज भी ट्रॉमेटाइज्ड है, यानी शी इज़ इन अ स्टेट ऑफ अटर शॉक एंड डिस्ट्रेस. Now I'll start the second part of this chapter. Now the first story of the second part, this is a story from Thailand. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. अब ये जो स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड को बिलोंग करती थी, एंड दे हैड कम टू थाईलैंड एट फुके बीच जस्ट टू सेलिब्रेट क्रिसमस. अब जो टिली स्मिथ थी, शी वॉज 10 years old, वो स्कूल में पढ़ने वाली 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, और उसकी जो सिस्टर थी, जो लिटिल सिस्टर थी, शी वॉज 7 years old, और उसके पेरेंट्स के क्या नाम थे? पेनी स्मिथ एंड कोलिन स्मिथ. It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. Now here, it was December 26th and she was standing with her family on the beach. Tilly and her mother, Penny Smith, both saw the water swelling. उन दोनों ने वाटर को, टिली और उसकी मदर ने, दोनों ने वाटर को स्वेल होते हुए, यानी उसको बढ़ते हुए देखा. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी मोमेंट. अब बीच जो था, क्योंकि वेव्स लंबी लंबी थी, वो ढकती चली जा, वो आगे आती बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए जो बीच था वो छोटे से छोटा, उसका जो स्मॉल साइज होता गया. दे सॉ द सी स्लोली राइज and start to foams. Tilly saw the sea making whirlpools. Whirlpools भंवर को बोलते हैं. टिली ने ये भी देखा कि भंवर बन रहे हैं, पानी बढ़ता चला जा रहा है और जो बीच था वो छोटा होता चला जा रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अब टिली स्मिथ को जो था, वो 10 साल की छोटी सी बच्ची, उसको समझ में आ जाता है, कुछ गलत हो रहा है. एंड उसका जो माइंड था उसमें बार बार, जो 2 हफ्ते पहले उसने इंग्लैंड में ज्योग्राफी में जो लेसन पढ़ा था, वो उसे बार बार याद आ रहा था. Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. अब उसको वो देख करके, जब वो whirlpools बन रहे थे, उसको देख करके उसको याद आता है कि ये वाले जो थे सीन उसने पहले भी देखा था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I don't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Now, Tilly's, parents, ये जो टिली की जो मदर थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो नहीं सेंस कर पाई कि कुछ क्या होने वाला है. बट जब उन्होंने अपनी बेटी को हिस्टेरिकल होते हुए, यानी बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल मीन्स व्हेन यू आर हिस्टेरिकल, यू शाउट, यू लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, यानी जब आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो. तो वो बताती है, एक्चुअली टिली को उसके दिमाग में तो उसका ज्योग्राफी का चैप्टर आ रहा था, जो 2 हफ्ते पहले उसकी टीचर ने उनको समझाया था और उसका वीडियो भी दिखाया था. तो उसको वही सेम जो सीन है वो उसको सामने अपना हुआ होते हुए आ रहा था. तो वो समझ गई थी कि कुछ ये जो अर्थक्वेक, ये जो सुनामी है वो आने वाली है और कुछ बुरा होने वाला है. और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी अपने फैमिली को कि सेफ साइड पर जाने के लिए, वहाँ से दूर जाने के लिए वो चिल्लाने लगी. अब उसकी मदर बोलती हैं कि हालांकि वो अलार्म नहीं हुई थी, वो सेंस नहीं कर पाई थी कि कुछ ऐसा, कुछ सुनामी जैसा कुछ होने वाला है. लेकिन जब उन्होंने अपनी डॉटर को ऐसे चिल्लाते हुए सुना, उसको ऐसी हालत देखी, तो वो लोग डर गए और उनको लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस तो ज़रूर है.
Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. It was screaming. I was screaming, run! The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Now, Tilly's parents took her and her sister to the swimming pool at the hotel. अब जो उसके जो पेरेंट्स थे वो टिली के पेरेंट्स उसको और उसकी छोटी जो सिस्टर थी वो स्विमिंग पूल की तरफ चले गए, यानी सी से बीच से हट करके वो स्विमिंग पूल की तरफ चले गए. एंड मेनी अदर्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. देन इट वॉज एज इफ तब ऐसा लगा कि जैसे इतनी लंबी इतना सारा जो लंबी लंबी जो ऊंची वेव्स थी वहाँ ऐसे लगा कि पूरा का पूरा सी वाटर ही उनके पीछे आ गया. The family took refuge in the third floor of the hotel, यानी जिस होटल में वो ठहरे थे या जो होटल उनके पास था उस समय सी के, वो वहाँ की थर्ड फ्लोर के ऊपर उन लोगों ने वहाँ पर वो स्टे किया. वहाँ पर वो जा करके अपनी लाइफ सेव करने के लिए वहाँ पर चले गए. द बिल्डिंग withstood the force of the tsunami, यानी 3 बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स भी झेल गया. वो खड़ी रही बिल्डिंग, उसको कुछ नहीं हुआ होटल की बिल्डिंग को. If they had stayed on the beach, then they would have been dead. यानी वो बताती है कि अगर वो लोग बीच पर होते तो आज वो शायद जिंदा नहीं होते. अब जब वो जो टिली स्मिथ थी वो वापस इंग्लैंड गई तो उसने वहाँ जा कर के अपनी क्लासमेट्स को वो सारी जो उसके साथ जो ये टेरिफाइंग जो ये हुआ था जो इंसिडेंट था वो जा कर के उनको सुनाया. Now I'll read out and explain the third part of the story, third and last part of the story. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. यानी जब slam means to strike forcefully. इससे पहले कि ये जो giant waves थी सुनामी की वो हिट करती इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरियाज़ को, जो वाइल्ड और जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे. एक कहा जाता है कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है. दे हैव अक्यूट पावर ऑफ हियरिंग. उनको पहले से ही वो लोग सेंस कर लेते हैं किसी भी डेंजर को. सो दे फ्लेड टू सेफ्टी. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. अब बताते हैं जो आई विटनेस यानी जो जिन्होंने आंखों देखी जो किस्से सुनाते हैं लोग, वो बोलते हैं कि उस टाइम एलिफेंट्स जो थे वो ऊंची जगह पर हायर ग्राउंड की तरफ जाने के लिए भाग गए. वो उन्होंने भागना शुरू कर दिया. डॉग्स जो थे उन्होंने बाहर जाने को जो है रिफ्यूज़ कर दिया, वो नहीं रेडी थे बाहर जाने के लिए. फ्लेमिंगोज जो कि वेडिंग बर्ड्स होती हैं, उन्होंने जो अपने लो एरियाज़ में जहाँ पर वो ब्रीडिंग एरियाज़ में रहती हैं उन्होंने वो खाली कर दिया, वो भी ऊंची जगह के लिए निकल गई. जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में सब अंदर अपने अपने शेल्टर्स में चले गए. एंड दे रिफ्यूज टू कम आउटसाइड एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट. एंटाइज्ड मीन्स जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए मतलब करते हैं ना, टेम्प्ट करते हैं, लुभाते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटाइज्ड. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. अब जो इस स्टोरी में बताया गया कि बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स्थ सेंस होती है और जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कब जो है अर्थ को एक आने वाला है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो है दे कैन सेंस. Some experts believe that animals more acute hearing, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 2 चीज़ें एनिमल्स पोजेस करते हैं. फर्स्ट इज सिक्स्थ सेंस एंड द अदर वन इज दे हैव acute hearing, यानी वो कहते हैं ना माइन्यूट जो इंसान जो ह्यूमन बींग्स के कान सुन भी नहीं सकते हैं वो साउंड्स भी सुन सकते हैं एनिमल्स. तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है किसी भी अप्रोचिंग डिजास्टर के बारे में इससे पहले कि ह्यूमन बींग्स उसको रियलाइज़ कर पाए या सेंस कर पाए. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries.
but not many animals have been reported dead. यानी ये जो सुनामी है जिसने तकरीबन 1.5 लाख लोग जो अलग अलग जगह पर उनके जो सुनामी के कारण जो मर गए, ये रिपोर्ट हुआ, ह्यूमन डेथ्स रिपोर्ट हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स के मरने की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई. तो ये रीज़न एक हो सकता है बिकॉज एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड अक्यूट हियरिंग सेंस. Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished means died, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. So along India's Cuddler coast, जहाँ पर कि बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी डेथ हो गई थी सुनामी के कारण, लेकिन जो बफलोज, गोट्स और डॉग्स यानी एनिमल्स बहुत कम जो थे वो मरे थे. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses. Carcasses means dead body of body of dead animals. Yeah, dead body of animals. No animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. Now here in Yala National Park in Sri Lanka 60 visitors were washed away. यानी जो 60 जो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे विजिटर्स, वो पानी में बह गए थे, सुनामी की जो वेव्स थी उसमें बह गए थे, but only 2 animals died in that place. In the same park people had observed 3 elephants run away from the beach an hour before the tsunami hit. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. ये कैसे ऑब्जर्व किया होगा? बिकॉज पीपल अगेन रिलेट दीज टू क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स दैट द एनिमल्स हैव. यही कि एक तो उनकी एक्यूट हियरिंग जो पार होती है और जो उनकी सिक्स सेंस होती है, क्योंकि जो वहाँ पर जो आई विटनेसेस थे उन लोगों ने भी बताया कि ये जो पतनंगला बीच था वहाँ पर जो याला नेशनल पार्क है वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1 घंटे पहले जब यहाँ पर सुनामी ने हिट किया 3 एलिफेंट्स को भागते हुए देखा था. हो सकता है उन 3 एनिमल्स ने वही सेंस कर लिया. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gala said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब जो एक श्रीलंकन जो एक जेंटलमैन है वो कोस्ट पर ही रहते हैं नियर गाला, वो बताते हैं कि उनके जो 2 डॉग्स हैं उनको यूजुअली बहुत पसंद है बाहर घूमना, लेकिन उस दिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो गए ही नहीं. और वो बोलते हैं कि दे आर ही इज़ थैंकफुल उसको इसी कारण उसके दोनों डॉग्स के कारण ही उसकी खुद की लाइफ भी बच गई थी. बिकॉज उस दिन शायद वो उन 2 डॉग्स ने जो है वो सेंस कर लिया था डिज़ास्टर, एंड दैट वाज व्हाई दे रिफ्यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक एंड मोस्ट प्रॉबेबली सेव्ड हिज श्रीलंकन जो जेंटलमैन था उनकी भी और अपनी, दोनों डॉग्स ने अपनी भी लाइव्स बचा ली. With this, lesson number 2 is completed. Students, I hope you would have understood the lesson and thank you for listening.